students. My name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 6, that is molecular basis of inheritance. Today we will start the next topic, that is translation. So let's start. Okay, let's start then the new topic, that is translation. Okay students, before we discuss anything about translation, let's revise the most important topic, that is central dogma of molecular biology. Students, you already know that central dogma was proposed by Francis Crick, and according to central dogma, the flow of information always takes place from DNA to RNA and from RNA to proteins, right? DNA transfers its information to RNA, and that process is known as transcription. Already we have discussed about the transcription, and then now it is the RNA who is going to translate his information and results in the formation of proteins. So ultimately, I explained you in the previous video also, students, the gene expression is protein synthesis. So today we will discuss about the second part, that is translation. So let's start. Now, transcription, you already know students that it is the synthesis of single-stranded RNA from double-stranded DNA template. We have already seen that DNA strand whose polarity is 3 to 5, it acts as a template, and from DNA the DNA passes its information to messenger RNA. स्टूडेंट्स वी नो दैट डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है. सो डीएनए जो है और जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है वो साइटोप्लाज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है. सो डीएनए अपना न्यूक्लियर पोर्ट्स तो बाहर नहीं आ सकता, इसलिए डीएनए अपनी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक मैसेंजर ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, एंड दैट मैसेंजर इज मैसेंजर आरएनए. नाउ ये ਜਿਹੜਾ मैसेंजर आरएनए है ये ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਫॉर द process of making proteins. So what is translation, students? It is the first stage of protein biosynthesis from RNA. In this process, formation of a polypeptide by using messenger RNA as a template. सो ट्रांसलेशन की होएगा बच्चे, जो बेस सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए कोल है उस बेस सीक्वेंस के नाल गाइड किया जाएगा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जिहड़े ने वो लिंक होंगे और दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट. प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है बच्चे वो कितने होएगा, राइबोसोम्स विच होएगा, बिकॉज राइबोसोम्स जो हैं दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइट. And then very important line कि both transcription and translation, they are the part of gene expression, right? Now next, okay students, let us start in detail the process of translation. Translation is the process in which formation of polypeptide. What is polypeptide? Because students, proteins are made from amino acids. We have already done this. When amino acids are linked to each other with the help of a peptide bond. So 20 amino acids are required to make one protein. So different amino acid, they link with the help of this peptide bond, and they results in the formation of polypeptide chain. And now what? By decoding messenger RNA. इस वास्ते सानू स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए नू डीकोड करना पड़ेगा, बिकॉज मैसेंजर आरएनए जो है वो बेस सीक्वेंसेस जो मैसेंजर आरएनए कोल्स ने, जो कोडोन्स मैसेंजर आरएनए कोल है उस नू डीकोड करांगे, जो कि ट्रांसक्रिप्शन दे विच प्रोड्यूस होए सी, राइट. सो वी हैव ऑलरेडी डन कि ये राइबोसोम्स दे ट्रांसलेशन का प्रोसेस कितने होएगा, राइबोसोम्स कोल होएगा, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज एंड दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. So it begins after messenger RNA enters the cytoplasm. क्योंकि हमने just now explained you कि messenger RNA formation हो रहा है inside the nucleus. प्रोटीन सिंथेसिस होएगा inside the cytoplasm. So messenger RNA न्यूक्लियर पोर्ट्स तो एग्जिट होके साइटोप्लाज्म ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा और ਉੱਥੇ प्रोसेस होएगा. It uses tRNA as an interpreter of messenger RNA. ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ how. Okay. Students, before we discuss the translation process in detail,
ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ the machinery which is required for translating the language of messenger RNA into the language of proteins। ਆਪਾਂ messenger RNA ਦੇ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, messenger RNA ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, into the language of protein। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ messenger RNA ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ messenger RNA ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ ਹੈ DNA ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ DNA ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DNA ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ DNA ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। DNA ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ DNA ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਪੀ ਆਫ DNA ਸੀਕੁਐਂਸ that represents a protein, right? Then we need transfer RNA. This is another type of RNA। transfer RNA जो है स्टूडेंट वो एक अडेप्टर का काम करेगा between the codons and amino acids they specify। इसका ਕੀ मतलब है स्टूडेंट्स, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੈਪਟਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚੇ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਜੋ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਂਟੀਕੋਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो ट्रांसफर RNA जो है स्टूडेंट, इट विल रीड द कोडॉन ऑफ मैसेंजर RNA बाय इट्स एंटीकोडॉन आर्म। ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड tRNA ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਾਈਲ tRNA ਸਿੰਥੇਟੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਇੰਜ਼ਾਈਮ। ਦੈਨ ਪੈਪਟਾਈਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਜ਼ is a very important enzyme students। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਲਾਰਜਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। and then the ribosomes, they are the macromolecules ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸੈਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਸੈਲ स्टूडेंट्स दिस इज न्यूक्लियस, राइट? एक ही है न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट ये साइटोप्लाज्म है। सो इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव DNA and DNA is our master, and then DNA is just giving its information to messenger RNA। so this process is known as transcription। and now messenger RNA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ messenger RNA mature messenger RNA ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਔਰ ਟੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ messenger RNA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। then messenger RNA student, this is nuclear pore, and messenger RNA is coming out of the nuclear pore, and what is this? This is the cytoplasm। This is the cytoplasm। so in the cytoplasm we have ribosomes, we have amino acids ਹੈਗੇ ਹੈ। then ਸਾਡੇ ਕੋਲ messenger RNA ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ transfer RNA ਔਰ ribosomes, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ cytoplasm ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। So this is a very important part of machinery students। this is transfer RNA। so process ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ transfer RNA ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹਦਾ ਕਲੋਵਰ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and this part is known as anticodon। ਐਂਟੀਕੋਡਨ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਬੇਸਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਕੋਡੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल मैसेंजर RNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ that is GAG, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਦਾ ਐਂਟੀਕੋਡਨ ਦੇਖੋ। G ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ C, A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ U ਐਂਡ G ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਦਾ ਜੋ ਐਂਟੀਕੋਡਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਕੋਡਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ D ਲੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ D
एच लूप हुंदा है। इत्थे जिहड़ा साडा अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज इंजाइम है जो कि अमाइनो एसिड की अटैचमेंट करेगा। इत्थे 3 डैश एंड ते इत्थे अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड है 3 डैश डैश, इत्थे OH ग्रुप हुंदा है। तो उस दे विच ये जिहड़ी है एंजाइम बाइंडिंग साइट है। उस तो बाद इत्थे एक T लूप है स्टूडेंट्स, इत्थे साडे राइबोसोम्स अटैच करनगे एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ आपां एक बारी अपनी फैक्ट्री बारे भी जरूर क्लीयर कर लीए स्टूडेंट्स। साडी प्रोटीन फैक्ट्री दैट इज़ द राइबोसोम्स, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मैम्ब्रेन। जिहड़े प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हुंदे हैं दे आर स्मॉलर इन साइज हुंदे हैं, लेस डेंस हुंदे हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स 2 यूनिट्स तो मिलके बच्चे बनते हैं। जदों नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, when there is no protein synthesis, ਜਦੋਂ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा तो राइबोसोम के दोनों यूनिट्स द स्मॉलर यूनिट एंड द बिगर यूनिट दोनों बच्चे सैपरेट होंगे ने और अलग रहते हैं। बट जदों ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है तो दोनों यूनिट्स जो ने वो यूनाइट करते हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है और इस प्रोसैस के विच मैग्नीशियम आयंस जो ने वो हैल्प करते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम के जो 2 सब यूनिट ने, हर एक जो सब यूनिट है किस तरह की फॉर्मेशन होंगी है, इट इज़ मेड फ्रॉम द प्रोटीन एंड अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ RNA दैट इज़ rRNA और इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल RNA, राइट। सो स्टूडेंट्स इत्थे आपां देख सकते हाँ द लार्जर यूनिट एंड द स्मॉलर यूनिट। सो लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट जिहड़ा बच्चे हुंदा है इन्हां दे विच जदों ये यूनाइट करते हैं इन्हां दे विच एक ग्रूव हुंदा है, एक गैप हुंदा है। सो वो जिहड़ा गैप है उत्थे एक्चुअली मैसेंजर RNA जो है जो आके बाइंड करता है। जिहड़ा राइबोसोम दा स्मॉलर यूनिट हुंदा है स्टूडेंट्स उस दे नाल मैसेंजर RNA जदों ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुंदा है तां जिहड़ा स्मॉलर यूनिट है स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के नाल मैसेंजर RNA जो है वो आके बाइंड करता है। ठीक है, एंड नाउ सो दिस इज जदों प्रोटीन सिंथेसिस होएगा राइबोसोम के दोनों यूनिट्स जो हैं वो आपस अटैच हो जाएंगे और कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा और राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट के नाल जिहड़ा साडा mRNA है जो कि ट्रांसक्राइब होके आया है वो mRNA बाइंड हो जाएगा, राइट। नाउ Student, this is the larger subunit of ribosome. Before we start the main process, सानू इहदा structure जो है वो बहुत clear होना चाहिए है so that सानू translation दा process दे विच कोई भी confusion ना होवे। Dear students, राइबोसोम इत्थे मैं कंप्लीट राइबोसोम शो करता है। द ग्रीन वन इज द स्मॉल पार्ट और द स्मॉल सब यूनिट एंड दिस पर्पल वन इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एंड दिस इज मैसेंजर RNA जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है जो कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के नाल अटैच्ड है। बच्चे राइबोसोम के कोल इत्थे आपां 3 पार्ट्स हैं, 3 एरियाज ने, 3 साइट्स हैं उहदे कोल। फर्स्ट इज E साइट, second is P site and third is A site, right। जो E है बच्चे that is exit। exit मतलब है इत्थों साडा ट्रांसफर RNA जदों ट्रांसफर RNA एम्प्टी हो जाएगा उहदा जिहड़ा अमाइनो एसिड है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो अमाइनो एसिड जदों खाली हो जाएगा तो इत्थों एग्जिट हो, राइट। देन यू हैव P site। P site जो है दैट इज पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट। बच्चे जिहड़ा साडा फर्स्ट ट्रांसफर RNA आएगा जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड लेके आंदा है वो हमेशा P साइट ते आंदा है। ठीक है, P साइट ते ट्रांसफर RNA आएगा जिहदे कोल कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होएगी। लेकिन जिहड़ी A साइट है स्टूडेंट्स इनू असी अमाइनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट बोलते हैं। हाँ, जिहड़ा भी न्यू अमाइनो एसिड आएगा वो हमेशा A साइट ते ही आएगा, ऑलवेज एट द A साइट। ठीक है, बट इत्थे तुसी एक गल हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना है जदों ट्रांसलेशन का प्रोसैस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट अमाइनो एसिड हमेशा P साइट ते आंदा है और इसनू असी पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट बोलते हैं। जदों आपां प्रोसैस करेंगे तो स्टूडेंट्स तुहानूं ये होर भी ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। उस तो बाद जिहड़ा लार्जर सब यूनिट है स्टूडेंट्स जदों आपां मशीनरी देखी सी उत्थे मैं तुहानूं एक एंजाइम का नाम दस्सिया सी पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। सो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो कित्थे प्रेजेंट होंदा है वो लार्ज सब यूनिट जो होंदा है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। सो ये जिहड़ा एंजाइम है ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच हेल्प करता है और एक तरह का ये राइबोजाइम है, इट इज़ राइबोजाइम्स। जिहड़ा rRNA है वो है एक तरह का और एक स्पेशल तरह का एंजाइम है जो कि लार्जर सब यूनिट विच प्रेजेंट होंदा है। सो लेट अस स्टडी नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन।
ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ enzyme and in the presence of energy source, that is ATP. Enzyme is amino acyl tRNA synthetase, right? और मैग्नीशियम आयन्स ऑल्सो। सो इस एंजाइम की प्रेजेंस के विच और एनर्जी सोर्स की प्रेजेंस के विच अमाइनो एसिड्स एक्टिव हो गए और हुण साडे कोल बन गया अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्पलैक्स। ये अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड उन्हां दा फॉर्म हैगा। हुण की होएगा, अमाइनो एसिड्स ने किस दे नाल बाइंड होना है? ट्रांसफर RNA दे नाल, बिकॉज ट्रांसफर RNA अडेप्टर है, उन्हें कोड नू भी रिकोगनाइज करना है और उन्हें अमाइनो एसिड नू भी पिक करना है। हुणे आपां एक्सप्लेन किया। सो हुण की होएगा, जदों अमाइनो एसिड एक एक्टिवेटेड फॉर्म दे विच आ जाणगे, वो किदे नाल बाइंड करनगे? tRNA दे नाल बाइंड करनगे, जिथे ओहदा 3 प्राइम एंड है, जिथे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, उत्थे अमाइनो एसिड बाइंड हो जाएंगे और साडे कोल की बन जाएगा? tRNA अमाइनो एसिड कॉम्पलैक्स जो है वो बन जाएगा। ये एक्टिवेटेड फॉर्म आ गया साडे कोल, ठीक है। और इस दे नाल जेडे साडे अपना जो आपां जदों ये बाइंड हो गया, चार्ज हो गए, ट्रांसफर RNA चार्ज हो गया, तो जेड़ा एंजाइम होएगा या जेड़ा AMP हैगा वो सारा की होएगा? रिलीज हो जाएगा। नाउ उस तो बाद साडा हुण जदों चार्जिंग होगी तो साडा फर्स्ट स्टैप होएगा, दैट इज़ इनीशिएशन प्रोसैस की होएगा, स्टार्ट होएगा, उसनूं असीं कहांगे इनीशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जदों पॉलीपेप्टाइड चेन का इनीशिएशन होएगा तो सारे जिन्ने भी कंपोनेंट्स हैं, जिन्नी भी मशीनरी है, वो हुण सारी इकट्ठी होएगी। तो सब तो पहला की होएगा स्टूडेंट्स, जिहड़ा साडा राइबोसोम के दोनों यूनिट अलग अलग सीगे, सब तो पहला जिहड़ा राइबोसोम का जिहड़ा स्मॉल यूनिट हैगा उस दे नाल मैसेंजर RNA आके अटैच हो जाएगा 5' to 3' इदा, राइट। तो जिहड़ा प्रोकैरियोटिक दे विच जदों इनीशिएशन हुंदी है, इट रिक्वायर लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स, मैसेंजर RNA, इनीशिएटर tRNA चाहिए जिहड़ा कि फर्स्ट अमाइनो एसिड लैके आएगा। और इनीशिएशन वास्ते सानू कुछ फैक्टर्स भी चाहिए हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इनीशिएशन फैक्टर 1, इनीशिएशन फैक्टर 2 एंड इनीशिएशन फैक्टर 3। सो सानू प्रोकैरियोट्स दे विच किन्ने फैक्टर्स चाहिए ने? 3 इनीशिएशन फैक्टर्स चाहिए ने, जबकि यूकैरियोट्स दे विच सानू तकरीबन 9 इनीशिएटर फैक्टर्स जो ने वो रिक्वायर्ड ने, प्लस सानू एनर्जी चाहिए है GTP। बच्चे इत्थे एक इंपॉर्टेंट गल है, इसनूं बहुत ध्यान नाल सुनो। जिहड़ा इनीशिएशन फैक्टर 3 है वो राइबोसोम का जिहड़ा छोटा यूनिट है 3S उस दे नाल बाइंड हो जाता है और राइबोसोम नूं प्रिवेंट करता है वड्डे यूनिट नाल बाइंड होने वास्ते विदाउट mRNA। पहला उहदे नाल mRNA बाइंड होएगा, फिर उस दे नाल बिग जिहड़ा यूनिट है वो उस दे नाल अटैच होएगा। सो इनीशिएशन फैक्टर की करता है, जब तक मैसेंजर RNA स्मॉलर सब यूनिट नाल अटैच नहीं हो जाता तब तक वो लार्जर यूनिट नूं उस दे नाल अटैच नहीं होण दिंदा। क्लीयर स्टूडेंट्स? देन इनीशिएशन फैक्टर 2 हैगा और अलॉन्ग विद GTP जो साडी एनर्जी सोर्स है, और इनीशिएशन फैक्टर 1 जो है वो स्मॉलर यूनिट दे नाल बाइंड हो जाता है और असिस्ट करता है चार्ज इनीशिएटर tRNA नूं, जिहड़ा साडा इनीशिएशन शुरू हो रही है, जिहड़ा फर्स्ट अमाइनो एसिड tRNA लैके आ रहा है उसनूं वो बाइंड करने दे विच हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स इस डायग्राम बहुत सिंपल है, तुसीं इसनूं ध्यान नाल देख सकते हो। प्रोसैस ऑफ इनीशिएशन जदों स्टूडेंट स्टार्ट होएगा, सब तो पहला जिहड़ा फर्स्ट कोडॉन आएगा वो कित्थे आएगा स्टूडेंट? साडा AUG जिहड़ा हैगा साडा फर्स्ट कोडॉन होंदा है, ठीक है। सो हुण की होया, सब तो पहला तो ये तुसीं देखो कि जदों इनीशिएशन हो रहा है, सब तो पहला तो राइबोसोम दे नाल जदों मैसेंजर RNA, ये मैसेंजर RNA 5' to 3', ठीक है, मैसेंजर RNA आके बाइंड हो गया। उस तो बाद की होएगा, जिहड़े दोनों सब यूनिट ने वो आपस दे विच अटैच हो गए। बच्चे जिहड़ा कोडॉन AUG है वो कित्थे आ गया? P साइड ते आ गया, और इत्थे E साइड ते जिहड़ा कैप पोर्शन है मैसेंजर RNA दा वो कैप रीजन जिहड़ा हुंदा है वो उस दे नाल अटैच हो जाता है। उस तो बाद की होएगा, हुण की है ये अपनी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैसेंजर RNA का जिहड़ा इनीशिएटर कोडॉन है दैट इज़ AUG,
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਇਸ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਦਾ ਜੋ ਐਂਟੀਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। AUG ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਂਟੀਕੋਡ। ਜੋ ਐਂਟੀਕੋਡ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਂਟੀਕੋਡ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ students see here, so first code is AUG, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, P ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ A ਕੋਡਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕੋਡਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ U ਦਾ A, G ਦਾ C, UAC ਕਿਸ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਮਿਥਾਇਓनिन ਦਾ, right? That is the first amino acid. And just now I explained you students कि first amino acid will always come at the P site. ठीक है, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, P ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, P ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਇੱਕ 3 ਸਟੈਪਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਇਲੋਂਗੇਟ ਦ ਪॉलीपेप्टाइड चेन बाय सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ਹੁਣ अमाइनो एसिड्स जो है ऐड होते जाएंगे। अमाइनो एसिड किद्दां अटैच होंगे, एक कोड तो डिपेंड करेगा, मैसेंजर आरएनए ते किहड़ा कोड आया है उस दे नाल एंटी कोड मैच होएगा एंड दैन ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड नूं पिकअप करेगा। इलोंगेशन फैक्टर वास्ते भी कुछ प्रोसैस वास्ते भी कुछ फैक्टर्स ने जिन्हां नूं आपां इलोंगेशन फैक्टर्स कहने आ, जो इस प्रोसैस दे विच हेल्प करते हैं। सो ये भी 3 स्टैप्स प्रोसैस है। सब तो पहला बाइंडिंग प्रोसैस होंदी है, अमाइनो एसाइड टीआरएनए बाइंड करते हैं ए साइड ते। हुण ए साइड ते नवा अमाइनो एसिड आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी और तीसरा प्रोसैस है ट्रांसलोकेशन। लेट्स सी नाउ की होएगा, हुण साडा पी साइड ते ऑलरेडी इनिशिएटर टीआरएनए आ चुका है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, A ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 30S ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, 30S ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਟੇਨਸ ਮੈਟ tRNA ਇਨ ਦਾ P ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਫਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, P ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ A ਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, A ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ। ठीक है, प्रॉपर कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग होएगी और इसके वास्ते सानू इलोंगेशन फैक्टर्स भी चाहिए ने, इलोंगेशन फैक्टर 1A एंड वी आल्सो नीड एनर्जी दैट इज GTP। सब तो पहला हुण की होएगा, जदों आप कोड्स नू रिकगनाइज कर लिया जिहड़ा कि A साइड ते आया है, हुण की होएगा, जिहड़ा लार्जर सब यूनिट है उहदे कोल की है, एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। हुण पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी। पेप्टाइड बॉन्ड किहदे विच बनेगा बच्चे, जिहड़ा फर्स्ट अमाइनो एसिड है जिहड़ा P साइड ते है, जिहड़ा अपने कोल P साइड ते अमाइनो एसिड सीगा और जिहड़ा नवा अपने कोल A साइड ते अमाइनो एसिड आया, इन्हां दोनां दे विच बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी, दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किहदे विच होएगी, बिटवीन द मिथायोनिन और जिहड़ा नवा अमाइनो एसिड आया उस दे विच बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी। लेट्स सी द डायग्राम स्टूडेंट्स, देन इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू। So see this, okay, now अपना सेकेंड अमाइनो एसिड आ गया A साइड के ऊपर। ठीक है, ACA कोड सीगा, ट्रांसफर आरएनए दे एंटी कोड ने मैच किया, UGO सेकेंड अमाइनो एसिड आ गया थ्रियोनिन। नाउ की होएगा, जिहड़ा सेकेंड अमाइनो एसिड है A साइड ते और जिहड़ा फर्स्ट अमाइनो एसिड सीगा P साइड ते, इन्हां दोनां दे विच बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी और A साइड कोल हुण की आ गया, डाईपेप्टाइड आ गया। ठीक है, जदों A वाला अमाइनो एसिड बच्चे इधर शिफ्ट हो गया तो P साइड वाला ट्रांसफर आरएनए हुण खाली हो गया, उहदे उपर कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है और डाईपेप्टाइड बॉन्ड वाला जिहड़ा सेट है वो किहदे ते उपर है, A साइड ते उपर है। सी दिस, नाउ यू कैन सी दिस, P साइड जदों P साइड ने अपना अमाइनो एसिड इधर शिफ्ट करता A साइड के ऊपर और P साइड जिहड़ी है वो एम्प्टी होगी और जिहड़ा P साइड का अमाइनो एसिड है वो की करेगा, वो हुण जिहड़ी एग्जिट साइड है उत्थों बाहर एग्जिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जिहड़ा सेकेंड जिहड़ा ट्रांसफर आरएनए अपने कोल आएगा वो A साइड ते बाइंड करेगा, उसका एंटी कोडॉन बाइंड करेगा टू द सेकेंड कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड नालों हुण ट्रांसफर आरएनए ब्रेक हो गया, फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है हुण बाहर, फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो है वो एग्जिट हो जाएगा।
ਨਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ a process which is based upon the energy. What is translocation, students? It takes place in the enzyme. It also takes place in the presence of enzyme translocase. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ from one codon to the next codon. ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਡਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਕੋਲ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਈਪੈਪਟਾਈਡ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਸੀ, 2 ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਹੁਣ ਪੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਏ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ, ਏ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਡਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀ ਤੋਂ ਉਹ ਈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਔਰ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ UAA, UAG ਐਂਡ UGA। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਕੋਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕੋਡਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਸਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ RF1। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਕੋਡਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। See this diagram, students. So last code ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, so this is the last, that is a stop codon UAA, and what is this? This is releasing factor, students. So releasing factors आके bind करेगा। मैसेंजर आरएनए ਦੇ ਆਪਾਂ 3' एंड ਵੱਲ आ चुके हाँ, सारी ट्रांसलेशन हो चुकी है, पॉलीपेप्टाइड चेन बननी स्टार्ट हो गई है। सो इस समय जो रिलीज फैक्टर आके बाइंड करेगा तो ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड और ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द राइबोसोम्स। राइबोसोम के पार्ट्स फिर तो अलग अलग हो गए, डिसोशिएट हो गए, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਈंड ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ठीक है, उस तो बाद साडा जिहड़ा मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए जो है वो साडा अलग हो गया और जो साडा पॉलीपेप्टाइड चेन स्टूडेंट्स बनिया सी वो भी सैपरेट हो गया। सो ये जिहड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है स्टूडेंट्स, एक लीनियर चेन है, एक डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इस दे विच सानू दिख रहे हैं जो कि पैप्टाइड बॉन्ड के नाल लिंक ने। ये लीनियर चेन है। लेटर ऑन की हुंदा है, लीनियर चेन जो हुंदी है एक कॉइल करती है और प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो एज्यूम कर लेंदी है, जो कि एक्चुअली फंक्शनल प्रोटीन और एक्चुअली एक्टिव और फंक्शनल प्रोटीन जो है वो बन जाती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अज का ये टॉपिक बहुत इंटरस्टिंग सीगा। सो इस दे नाल आपां अपना सेंट्रल डोगमा भी कंप्लीट किया, बोथ प्रोसेस द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो यू जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड आई एम श्योर द ट्रांसलेशन process will become very clear to you. Thank you students, have a nice